हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है कि आप ये जो चैप्टर की दो कहानी है, एक मुकेश की और एक साहब की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मुकेश के कहानी के बारे में संपूर्ण सारांश को हिंदी और इंग्लिश में देखेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में मदद मिली। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा और यहाँ से अपने एक सारांश में हिंदी और इंग्लिश में अच्छी पकड़ आप बना सकते हैं, ताकि आपका क्वेश्चन आंसर लिखने में कोई डाउट ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि सम टाइम आई फाइंड ए रुपीज़ इन द गार्बेज। अब इसको मैंने आसान बनाने के लिए आपको इसके स्टेप लिख दिए हैं। टोटल आप देख सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7 स्टेप हैं। मतलब इस 7 हेडिंग में आपका ये पूरा सारांश कंप्लीट है। इसके नीचे मैं इसको हिंदी में मेंशन कर दिया हूँ। तो सबसे पहले पहला पैराग्राफ है, साहब लॉगिंग फॉर स्कूल। द ऑथर केम्स अक्रॉस Sahab every morning. She always found him searching for some things in a heap of garbage. When he has asked why did he do it, he replied, I have nothing else to do. She told him to go to the school, but there was no school in his neighborhood. She told him that she was going to start a school. Sahab was happy he would go to her school, but she did not intend to start a school. सेकेंड जो पैराग्राफ है आपकी हेडिंग, बेयर फुट। Sahab's full name was Sahab Alam. It means Lord of Universe. But the poor boy wandered on roads along with other barefooted poor boys like him. The author talked to other companion of Sahab. One of the barefoot boys said his mother would not bring his chappals down from the sill. One of them was wearing shoes thought they did not match. Another boy who had never had footwear wished he had a pair of shoes. Men's reason. Many children walk barefoot. Some people argue that lack of money is not the reason for it. Instead, it is a tradition to walk barefoot, but the author does not agree with them. She asserts that perpetual state of the poverty in his real case. Some children are lucky their prayer to get shoes has been granted, but the pickers remain barefoot. फोर्थ पैराग्राफ है कि विजिट टू सीमापुरी। The pickers live in Simapuri, so the author went there. Simapuri is very close to Delhi, but there is a word of difference between the two. Like all of the families of rag pickers, Saheb's family came from Bangladesh in 1971. They came here because their homes and fields were destroyed by storms. They had nothing to live on. Ragpickers' houses. About 10,000 ragpickers live in Simapuri. They live in mud structure with roofs made of tin and tarpaulin. They lack all civics amenities like sewage of running water. Living in Simapuri enable them to cast their votes and food. They move about and pitch their tent whenever they can feed food. Ragpickers is their sole means of earning a livelihood.
आगे लिखा नेक्स्ट पैराग्राफ 6 नंबर है कि एग्जिटी फॉर स्पोर्ट। ऑन विंटर मॉर्निंग द ऑथर फाइंड साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ नेबरहुड्स क्लब। ही इज वॉचिंग टू यंग मैन प्लेइंग टेनिस। देर आर ड्रेस इन वाइट। साहब लाइक द गेम बट ही इज content to watch it standing behind to fetch. Saab is wearing discarded tennis shoes that look strange over his discarded shirt and shorts. For one of has for one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream came true. But tennis is out of his reach. Sahab is servant. This morning Sahab is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. He works in a tea stall. He is paid 800 rupees and all his meals. Sahab is no longer his master. His face has lost the carefree look. He doesn't seem हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका इंग्लिश जो सारांश था कंप्लीट हुआ। अब इसकी हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं। कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है, साहब की स्कूल जाने की लालसा। इसमें है कि लेखिका हर सुबह साहब से मिलती थी। साहब हमेशा कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढते हुए मिलते थे। जब उनसे पूछा गया तो वह ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। साहब ने उन्हें स्कूल जाने के लिए कहा, लेकिन उनके मोहल्ले में कोई स्कूल नहीं था। साहब ने बताया कि वह एक स्कूल खोलेंगे और खोलने वाली हैं। साहब खुश हुए। आगे लिखा है कि वह उनके स्कूल जाएंगे, लेकिन उनका स्कूल खोलने का कोई इरादा नहीं था। नंगे पाँव। साहब का पूरा नाम साहिब आलम था। इसका अर्थ है ब्रह्मांड का स्वामी। लेकिन वह बेचारा लड़का अपने जैसे दूसरे नंगे पाँव वाले लड़कों के साथ सड़कों पर भटकता रहा। लेखक ने साहब के दूसरे साथियों से बात की। नंगे पाँव लड़कों में से एक ने बताया कि उसकी माँ उसकी चप्पलें खोल से नीचे नहीं उतारती, अर्थात ताड़ से नीचे नहीं उतारती। उनमें से एक ने जूते पहने हुए थे, हालांकि वे मेल नहीं खा रहे थे। और एक और लड़का जिसके पास कभी जूते नहीं थे, काश उसके पास एक जोड़ी जूते होते। मुख्य कारण, तीसरा पैराग्राफ है। कई बच्चे नंगे पैर चलते थे। कुछ लोग तर्क देते थे हैं कि पैसे की कमी इसका कारण है, बल्कि नहीं है, बल्कि नंगे पैर रहना एक परंपरा है। लेकिन लेखिका उनसे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि गरीब की निरंतर स्थिति ही असली कारण है। कुछ बच्चे भाग्यशाली होते हैं, जूते पाने की उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है, लेकिन कूड़ा बीनने वाले नंगे पैर ही रहते हैं। सीमापुरी की यात्रा। कूड़ा बीनने वाले लोग सीमापुरी में रहते हैं, इसलिए लेखक वहाँ गया। सीमापुरी दिल्ली के बहुत पास है, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। बाकी कूड़ा बीनने वाले परिवार की तरह साहब का परिवार भी 1971 में बांग्लादेश से आया था। वे यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि उनके घर और खेत तूफान में तबाह हो गए थे। उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं था। अगला प्रश्न है अगला पैराग्राफ है कूड़ा बीनने वाले के घर। सीमापुरी में लगभग 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। वे मिट्टी के घरों में रहते हैं, जिनकी छतें टीन और तिरपाल से बनी है। उनके पास सीवर और बहते पानी जैसी सभी नागरिक सुविधाएं नहीं हैं। सीमापुरी में रहने से उन्हें ओट डालने और खाने का मौका मिलता है। वे घूमते फिरते हैं और जहाँ भी उन्हें खाना मिलता है वहीं अपना डेर डाल लेते हैं। कूड़ा बीनने की उनकी आजीविका एकमात्र साधन है। खेतों के प्रति उत्सुकता। सर्दियों की एक सुबह लेखक साहब को अब पड़ोस के एक क्लब के बाड़े वाले गेट पर खड़ा पाता है। वह 2 युवकों को टेनिस खेलते हुए देख रहा है। वे सफ़ेद कपड़े पहने हुए। साहब को यह खेल पसंद आया, लेकिन वह बाड़े के पीछे खड़े होकर इसे देखने में संतुष्ट है। साहब ने पुराने टेनिस जूते पहने हैं, जो उसके बदरंग शर्ट और शॉर्ट्स के ऊपर अजीब लग रहे हैं। जो नंगे पैर चला हो, उसके लिए छेद वाले जूते भी सपने के सच होने जैसा है, लेकिन टेनिस उसकी पहुंच से बाहर है। साहब एक नौकर। आज सुबह साहब दूध की दुकान की तरह जा रहे हैं।
उनके हाथ में एक स्टील कनस्टर है, वह एक चाय की दुकान पर काम करते हैं। उन्हें 800 रुपये मिलते हैं, पूरा खाना भी। साहब अब उनके मालिक नहीं रहे। साहब अब उनके मालिक नहीं रहे। उनके चेहरे से बेफिक्री गायब हो गई। वह चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं लग रहे हैं। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट, आप देख पा रहे हो कि आपका जो हिंदी पैराग्राफ और इंग्लिश पैराग्राफ को कंबाइन करके किस प्रकार से मैंने इसको तैयार किया है। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और आप भी जो सोशल मीडिया के ग्रुप को यूज़ करते हैं उस सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। पूरे वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो लगातार बनती रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस बात को कह सकते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए।